Hello everyone, good morning. I welcome you again in the topic Euclid's geometry. It's a basic and beginning of the geometry. Okay, the complete geometry is actually built on this particular concept and this particular topic. So understand this topic very properly, and believe me, it's a very simple topic. One of the simplest topic. Within next 2 or 3 days, we will be completing this topic. That easy this is. Okay, so but before that, see, we should be strong with the base. So the base is nothing but these axioms. If you understand the axioms properly, if you know how to use these axioms properly, then there is nothing in the exercise after that. Okay, so let's know what is it. Again, I'll repeat. You have to remember these axioms with its all these words and the same way how they are. Okay, because every time you'll be writing this axiom during your question solving. So remember these axioms properly. Things are equal to the same thing are equal to one another. That means the transitivity, as we say, a is equals to b and b is equal to c, then a is equal to c, or a and b both are equal to 10, then a and b are equal. So transitivity, if equals are added to the equal, then the whole are equal. ये commonly use होता है. दो equal चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब दो इक्वेशंस हम लोग ऐड कर सकते हैं. इट्स लाइक दैट. इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल. द सेम थिंग व्हेन वी कैन ऐड टू इक्वेशंस, वी कैन subtract two equation as well. At the same time, things which are coincide to one another are equal to one another. That means जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है वो चीज़ें एग्जैक्टली इक्वल ही होती है. जैसे कि आपके पाम दोनों वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं तो वो इक्वल होता है. सो दैट्स इट. Whole is greater than the part. It's a very simple Euclid's axioms. Very simple. Whole is greater than the part, and we know it's very clear, very simple. Things are double of the same thing are equal to one another. मतलब कोई भी चीज़ का डबल करो तो वो भी इक्वल हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का अगर हाफ किया तो वो भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी हैव सीन. तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम. तो चलो, आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि इसका और यूक्लिड ज्योमेट्री का कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत तो रिलेशन होता ही है. सो कीप इन माइंड. तो क्या रिलेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू मेंशन दैट रिलेशन, मेंशन दैट एक्सियम देयर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. ए बी इज दिस वन. ये क्या हो गया? ओके, ए बी इज गिवन, बी सी इज गिवन, ए सी इज गिवन. Find at what value of x a, b and c are collinear. So what do you mean by collinear? Here is if a, here is b and here is c, they fall on the straight line. That's what we call it as a collinear, right? Here is a, here is b and here is c. So what is the condition behind being this particular 3 points collinear? The condition is ac is equals to ab plus bc. देखो, ac complete ac, isn't it? It is supposed to be addition of these two sides, right? Very clear, very simple. So AC is equals to क्या दिया हुआ है? 4x plus 4x minus 5. AB क्या दिया हुआ है? AB is x plus 3 plus BC क्या दिया है? 2x. That's it. अभी simplify करो, solve करो, you get your answer. 4x minus 5 is equals to 3x plus 3. x वाला टर्म इधर, 5 वाला टर्म उधर, तो what do I get? 4x minus 3x is x and 5 plus 3 is 8, तो x is equals to 8. That's it, हो गया, काम खत्म. हाँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन कौन सा एक्सियम यूज हुआ है ये कैसे पता चलेगा आपको? ओके, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच एक्सियम इज यूज्ड. कैन यू? चलो गेस करो इसमें से कौन सा एक्सियम यूज हुआ है. आई जस्ट शो यू ऑल द एक्सियम्स. चलो याद करो, क्वेश्चन को देखो. ओके, चलो बताओ कौन सा एक्सियम यूज किया हुआ है. नहीं समझ में आएगा ना? ओके, मैं बताता हूँ. इसमें फोर्थ एक्सियम यूज हुआ है. थिंग्स आर विच आर कोइंसाइड आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब कैसे? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए बी एंड बी सी कोइंसाइड विथ ए सी, therefore AC is equals to AB plus BC. So this is the concept used. So that's the problem here. Here you have to mention things which are coincide are equal to one another. Complete axiom you have to write here. ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? सिंपल, यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें. एक्सियम को यूज़ करना और कौन सा एक्सियम है वो याद रखना, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट हियर इन दिस केस. ठीक है, बाकी बहुत सिंपल है. ऐसे ही 2-3 स्टेप के ही क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं. द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी. तो ए बी इज गिवन इक्वल टू सी डी. तो देखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी. आपको प्रूव करना है ए सी. मतलब ये ए बी में ऐसे क्या ऐड करने के बाद मुझे ए सी मिलेगा, चेक कर दो. ये देखो, ए बी है, ए बी में बंदे पे अगर बी सी ऐड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए सी मिल जाएगा. तो मुझे वही करना है, बस मुझे क्या करना है, ए बी में
बी सी ऐड कर देना है। आपको तो पता है एक साइड में नहीं कर सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा, सी डी प्लस बी सी भी करना पड़ेगा। तो अभी चेक करते हैं ए बी प्लस बी सी क्या है। ए बी प्लस बी सी क्या है, ए सी है। सी डी प्लस बी सी क्या है, बी डी है। एंड दैट्स इट, व्हाट आई वांटेड टू प्रूव इज बीन प्रूव्ड। ये बहुत सिंपल है, दो दो तीन तीन स्टेप के ही आंसर्स है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, कौन सा एक्सियोम यूज़ किया हुआ है, चलो कम ऑन टेल मी विच एक्सियोम इज यूज्ड। टेल मी फास्ट 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 फास्ट। यस, सेकेंड एक्सियोम इज यूज्ड व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल एंड द होल आर इक्वल। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो हमने बी सी जो था वो दोनों तरफ ऐड कर दिया है। तो व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। इस इक्वल में बी सी एज ए इक्वल ऐड किया, देन जो भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें से इसे एग्जैक्टली उल्टा किया हुआ है। देखो इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे देखो ए सी एंड बी डी इक्वल दिया है, तो मैं बस मार्क करके रख रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। एंड आपको प्रूव करना है कि पार्ट ए बी इक्वल है। तो अगर ए सी से मुझे ए बी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ए सी से ए बी लाना है तो मुझे बी सी को सेपरेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे करता हूँ मैं ए सी, सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये तो मुझे पता है। ए सी माइनस बी सी, दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ऐड किया था वहाँ पे सेपरेट करना है, उतना ही डिफरेंस है। बी डी माइनस, अभी जो यहाँ पे बी सी माइनस किया तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा ना, इक्वल ही करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए सी माइनस बी सी। देखो ए सी माइनस बी सी क्या मिल जाएगा मुझे, ए बी। देखो करके देखो, सब्ट्रैक्शन इजी है, राइट। बी डी माइनस बी सी ये ज्योमेट्रिक सब्ट्रैक्शन है, ये अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन नहीं है। ओके ज्योमेट्रिक है तो फिगर देख के करना पड़ता है। ये सब्ट्रैक्शन जो ज्योमेट्री वाले जो होते हैं सब्ट्रैक्शन, वो डायग्राम देख के करना पड़ता है। हम लोग ऐसे अलजेब्रा जैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सी माइनस बी सी इज ए बी, लुक एट द डायग्राम। एंड बी डी माइनस बी सी, देखो बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो हो गया, जो मुझे प्रूव करना था मुझे मिल गया, राइट। लेकिन कौन सा है इस यहाँ पे एक्सियोम, कौन सा है, देखो आई जस्ट शो यू द एक्सियोम पेज। मैंने पर्पजली एक्सियोम पेज इस स्लाइड में भी लाया है। Yes, exactly, third one. If equals are separated from the equal, then the remainders are equal. Exactly correct. देखो दोनों क्वेश्चंस मस्त सॉल्व हो गए। कितने तीन तीन स्टेप के क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है डिफिकल्ट। देखो अभी करना क्या है, देखो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, द कंप्लीट पी क्यू। देखो यहाँ से ये से यहाँ तक पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक आर एस दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। इज इट गिवन दैट पी ओ इज इक्वल टू ओ एस, दिया हुआ है ना, ये देखो ये सिम्बॉल जो दिखा रहा है ये सेइंग द सेम थिंग, पी ओ इज इक्वल टू ओ एस एज वेल एज आर ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, ये तो गिवन है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू मेरा सेकंड एक्सियोम दैट इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल एंड द होल्स आर इक्वल, हम लोग दो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब पी ओ प्लस आर ओ इज इक्वल टू ओ एस प्लस ओ क्यू। लेकिन पी ओ प्लस आर ओ तो ऐड नहीं कर सकता। डायग्राम में देखो, देखो पी ओ प्लस आर ओ क्या ऐड कर सकता हूँ, या फिर ऐड करके मुझे पी क्यू मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हुई है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हुई है, गलती नहीं हुई है, लेकिन ये जो एडिशन किया हमने ये थोड़ा सा वियर्ड किया। अगर ऐसे करते, इमेजिन पी ओ प्लस ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस प्लस आर ओ, इट्स ओके नो, इक्वल है। इसको लिखते वक्त मैं ओ क्यू पहले आर ओ बाद में लिख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे ओ क्यू इज इक्वल्स टू आर ओ भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसलिए वो ऐड कैसे भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इक्वल्स आर एड टू द इक्वल, बस दैट्स इट। अभी पी ओ प्लस ओ क्यू क्या हो गया, पी ओ प्लस ओ क्यू पी क्यू हो गया, एंड ओ एस प्लस आर ओ क्या हो गया, आर एस हो गया। दैट्स इट, जो मुझे प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे एक्सियोम कौन सा यूज हुआ, एग्जैक्टली सेकंड एक्सियोम, इक्वल्स आर एड टू द इक्वल एंड द होल्स आर इक्वल, राइट। वही एक्सियोम यूज हुआ, इजंट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसे हमने साइड में किया था, जैसे साइड्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया, वैसे ही इन द सेम वे एंगल्स में भी हम लोग क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। चलो देखते हैं। एंगल 1, देखो यहाँ पे एंगल 1 कौन सा है। देखो कोई भी एंगल को नाम देने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखो अगर मेरे पास ये एंगल है ए बी सी, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एंगल ए बी सी। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं एंगल बी। और इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नंबर देना, उसको एंगल को नंबर देना। ओके, वो वैल्यू नहीं होगी या फिर डिग्री नहीं है, इट इज़ अ नंबर गिवन, तो इसको ऐसे बोलते हैं एंगल 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मैंने अगर बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 करो तो वो बोलते हैं एंगल 3, है ना, 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो यही समझाने के लिए 1 एंड 2 आर नॉट वैल्यू, 1 एंड 2 आर नंबरिंग।
ओके, जैसे आपको रोल नंबर्स होते हैं ना, वैसे ये नंबर्स है, ठीक है। रोल नंबर्स तो कभी ऐड नहीं होते, कभी किया आपने रोल नंबर्स को एडिशन? नहीं, वो तो एक नंबर होता है जस्ट टू आइडेंटिफाई। वैसे ही यहाँ पर भी जस्ट टू आइडेंटिफाई, यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ नेमिंग इट, राइट। ये क्या ओपन हो रहा है भाई, चलो ठीक है, रहने दो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, फाइन। चलो आगे बढ़ते, क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और मुझे क्या करना है, ए बी सी। अब यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं है नेम कहाँ पे, तो यहाँ ए में भी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी होगा, ठीक है। ए बी सी का मतलब कौन सा एंगल, आई विल जस्ट ड्रॉ शो यू हाईलाइटिंग इट। ये है मेरा ए बी सी, ठीक है। एंड वेयर इज सी बी डी, यू कैन चेक दैट कि मेरा सी बी डी किधर है। सी बी डी मेरा इधर है। इन दो एंगल्स को इक्वल करना है। अभी जो ए बी सी होगा वो 1 and 3 का एडिशन है, एंगल 1 and 3 है ना। तो एंगल 1 and 3 को मैंने अगर ऐड कर दिया ऐसे, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट। एंगल्स को एडिशन बराबर है ना, बात समझ में आ रही है। एंगल 1 प्लस 3 कितना है, एंगल ए बी सी। एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है, एंगल सी बी डी। डायग्राम में देखो, सी बी डी, एंगल सी बी डी। दैट्स इट, व्हाट आई वांटेड टू प्रूव इज बीन प्रूव्ड। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, यस, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, दैट्स इट, काम खत्म। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। अभी मुझे प्रूव क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। बस ये देखो, आपको दूसरा भी समझ में आ जाएगा। एक एंगल देखो इसमें से, तो क्यू पी आर, तो ये रहा क्यू पी आर। बस एक ही एंगल को देखो, एक ही एंगल को देखो। तो ये एंगल कैसे ला सकता हूँ मैं, 1 में क्या ऐड करने के बाद ये एंगल मिल जाएगा मुझे, जो ग्रीन वाला है, 3 ऐड करने के बाद मिल जाएगा। तो बस वही चीज़ करनी है, बस दोनों तरफ करनी है। देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। जो साइड में किया वही एंगल में भी करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 1 प्लस 3, देखो ठीक से क्या होगा, 1 प्लस 3 क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। 2 प्लस 3, देखो 2 प्लस 3 क्या होगा, चेक करके देखो, इट इज़ यस एस पी टी, एंगल एस पी टी। ये होगा ना, याद है या समझ में आ रहा है, ये एस पी टी, टी प्लस 3, राइट, है ना, गेटिंग इट। तो आपको चाहिए तो मैं कलर चेंज करके भी दिखा सकता हूँ, ये रहा एस पी टी 2 प्लस 3, राइट, समझ में आ गया। सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल, बस। हाँ, यस, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, अगेन द सेम थिंग, कौन सी वाली, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। बस ऐड किया ना, दोनों तरफ 3 ऐड किया, तो इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल्स आर इक्वल, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मे बी ये लास्ट हो सकता है, नहीं और एक है, चलो देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। पहले ये वाला करते हैं, ये वाला। पर्पज़ यहाँ पे मैंने नंबर नहीं डाला क्योंकि हमने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो आपको जब पीडीएफ मिलेगा, जब पीडीएफ में थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होगा, तो मैं क्या सोच रहा था कि इसी में से क्वेश्चंस कंप्लीट कर दो। ये जो है वीडियो को देख के आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो इफ़ यू वांट, नहीं तो फिर मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, ओके, डोंट वरी। बट लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसमें से कोई भी एक एंगल को देखो, कोई भी एक एंगल को देखा मतलब क्या देखा, इसको देखा, ए बी सी को। ए बी सी में क्या है, 2 and 4 का एडिशन है, तो इस 2 को एंड 4 को ऐड करना है, दो इक्वेशंस को, मतलब सिंपली बात है ना, सिंपल बात है, 2 and 4 को ऐड करना है, मतलब दो इक्वेशंस को ऐड करना है। तो एंगल 2 + 4, बस इसको ठीक से लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन अदर वे, लाइक एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब एडिशन थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखो 1 + 3 कितना है, ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंड 2 + 4 डायग्राम में देखो कितना है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो कोई भी एंगल जो आपको प्रूव करना है उसमें से एक देखो, आपको सेकंड भी मिल जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। तो दैट्स इट। और कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। सिंपल है यार, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो ये भी एक अलग सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको हमने वाइल एक्सप्लेनिंग यू द एक्सियोम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, x - 15 इज इक्वल टू 25, राइट। अभी हमें क्या करना है, x चाहिए तो 15 को कैंसिल कर देना है। 15 को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, बाय एडिंग 15 बोथ द साइड। तो x - 15
प्लस 15 इज इक्वल टू 25 प्लस 15, इस मेथड से करना है, ठीक है। तो 15 विल गेट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 40। बस डोंट फॉरगेट टू राइट यूक्लिड एक्सियम, विच वन, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल्स आर इक्वल, राइट। बहुत बार यूज़ किया ना, इक्वल से एडेड टू द इक्वल देन होल्स आर इक्वल, यस करेक्ट, वही ज़्यादा बहुत बार यूज़ भी होता है, राइट। ओके देन आगे बढ़ते हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज, ओके ठीक है, ये एंड ये दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है, एक्स इज इक्वल टू जेड दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। कुछ है नहीं यार, सिंपल सी बात है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बराबर है, एंड x इज इक्वल टू z। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को, मतलब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। मैं एडिशन के बारे में सोच रहा हूँ। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, तो y में z ऐड करना है, तो ये बस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, उल्टा लिखता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखना है इक्वेशन को, सो दैट यू कैन ईजिली ऐड एंड गेट इट डन। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, एडिंग टू इक्वेशंस, व्हाट डू आई गेट, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। बात समझ में आ गई। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीजन क्या है, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। अभी देखो दोनों तरफ से x एंड x तो कैंसिल हो जाएंगे, देख लो यहाँ पे x एंड यहाँ पे, या फिर इस x को इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, तो दोनों तरफ में से माइनस एक्स करेंगे, मतलब क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स माइनस एक्स, राइट। तो ये x एंड ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x एंड एक कैंसिल, जीरो हो जाएगा, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ x y प्लस z इज इक्वल टू 10। So what we have used here as well a property, which is that when equals are subtracted from the equal, then the remainders are equal. So that property also we use. So you need to mention these properties properly. ठीक है, यही है हमारा आधा टॉपिक तो खत्म हो गया, बस आधा रह गया, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट डेज टॉपिक. Till then, complete this simplest one. I know it's very interesting and simple. You can complete it, and while completing, you will remember the axioms as well. Till then, bye bye. See you tomorrow.